आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। मुल्क भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का असर हैदराबाद में देखा जा रहा है, जहां हैदराबाद में फी लीटर पेट्रोल की कीमत 119 रुपये 49 पैसे हो गई है। ऑयल कंपनी ने 4 शुमे को फी लीटर पेट्रोल की कीमत में 90 पैसे और फी लीटर डीजल की कीमत में 87 पैसे का इजाफा कर दिया है। वहीं मरकजी हुकूमत ये दावा कर रही है कि यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग में सभी मुल्कों में पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस पर असर पड़ा है, लेकिन हिंदुस्तान में इसका असर काफी कम हुआ है। Comment without looking at the global picture and what this military operation has done. Sir, at the height of COVID, and I talk about March 2020, gas prices were $19.56 a barrel. They went up in 2021 to $60 to $80. On 24th February, when the military action took place, suddenly they shot up to $92, then up to $124, went up to $130. Sir, are we the only country affected by this? I have with me here, sir, and I can give you the same on gas prices. We have raised the price of petrol by, I think, 9 rupees over 12 or 13 days when the international prices shot up. Now, I have something, sir. Gasoline at the pump, comparison between April 21 and March 22, in USA the increase percentage is 51%, in Canada 52%, in Germany 55%, UK 55%, France 50%, Spain 58%, Sri Lanka 55%, India sir 5%. Yes, our percentage increase is 1/10 of what it is elsewhere. No. Similarly, I could do for gas, sir. Sir, I thank you very much for the opportunity to be able to participate in this discussion on Rule 193. I think a lot of comment. टीआरएस पार्टी ने धान की खरीदी के मसले पर मरकज के खिलाफ मुजाहरा करने के लिए आज कौमी शाहराहों पर रास्ता रोको, एहतजाज और धरना मुनज़्ज़म किया, जिसमें टीआरएस के अरकान मुक़न्नना, अरकान पार्लियामेंट के अलावा पार्टी कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। टीआरएस कायदीन ने नागपुर, मुंबई, बेंगलुरु, विजयवाड़ा नेशनल हाईवेज पर मरकजी हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा करते हुए रास्ता रोको प्रोग्राम मुनज़्ज़म किया, जिसकी वजह से कई घंटों तक ट्रैफिक की आमद और रफ्त में खलल पड़ा। टीआरएस के कारगुजार सदर व वजीर बल्दी नज़्म व नस्क KT रामाराव की अपील पर तेलंगाना भर में कौमी शाहराहों पर टीआरएस की जानिब से रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। महबूबनगर जिले से गुजरने वाली कौमी शाहराह पर रियासती वज़रा निरंजन रेड्डी, श्रीनिवास गौड़, सूर्यापेट जिले की कौमी शाहराह पर वजीर बरकी जगदीश रेड्डी, जनगांव जिले में कौमी शाहराहों पर वजीर पंचायत राज एरवली दयाकर राव, निर्मल के करताल जंक्शन पर वजीर जंगलात इंदिराकरण रेड्डी के अलावा मुताल्लिक़ा हलकों के अरकान असेंबली, काउंसिल, जिला परिषद चेयरमैन और दूसरों ने शिरकत करते हुए काफी देर तक सड़क पर बैठ गए और धान की खरीदारी का मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया। निर्मल के करताल के पास नागपुर कौमी शाहराह पर रास्ता रोको प्रोग्राम में शिरकत करने वाले किसानों और टीआरएस के कारकुनों से खिताब करते हुए इंदिराकरण रेड्डी ने कहा कि धान की मुकम्मल खरीदारी तक बीजेपी हुकूमत के खिलाफ इसी तरह आवाज उठाई जाएगी। అందరూ పిడికిలెత్తి మరొకసారి తెలంగాణ ఉద్యమ ఉగ్ర రూపాన్ని చూపించాలి। ఇది తెలంగాణ గడ్డ, ఉద్యమాల గడ్డ, పోరాటాల గడ్డ, రైతుల
తెలంగాణకు ఇక్కడ ఏ బిడ్డకు ఆపద వచ్చినా గులాబీ జెండా లేస్తుంది. ఇది తెలంగాణను కాపాడుకునే శ్రీరామ రక్ష లాంటి జెండా అని మళ్ళొకసారి దేశానికి చాటి చెప్పాలి. ఆటటాకే వల్ల మొత్తం అందరి చేతులు లేపాలి. జై తెలంగాణ, జై కేసీఆర్, జై తెలంగాణ. రైతు బంధు కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం, రైతుల పట్ల బీజేపీ చూపిస్తున్న మంది వైఖరి, తెలంగాణ రైతుల పట్ల మోడీ మంది వైఖరి, తెలంగాణ రైతుల కొనుగోలు చేయాలి. తెలంగాణ పండుగ 10 రెట్ల గిన్నెలు కేంద్ర ప్రభుత్వం మంచి స్లోగన్. బీజేపీ మంది వైఖరి గట్టిగా అందరు చేతులెత్తి చేతులు అందరు బీజేపీ మంది వైఖరి నశించాలి. బీజేపీ మంది వైఖరి, బీజేపీ మంది వైఖరి, బీజేపీ మంది వైఖరి, బీజేపీ మంది వైఖరి. పంజాబ్ వడ్లు కొంటారు ఎట్లా, తెలంగాణ వడ్లు కొనరు ఎట్లా? మేమందరం ఎమ్మెల్యేలు అందరం పంజాబ్ వడ్లు కొంటారు ఎట్లా అంటే మీరందరూ గట్టిగా చేతున్నారు. పంజాబ్ వడ్లు కొంటారు ఎట్లా, పంజాబ్ వడ్లు కొంటారు ఎట్లా, తెలంగాణ వడ్లు కొనరు ఎట్లా? పంజాబ్ వడ్లు కొంటారు ఎట్లా, తెలంగాణ వడ్లు కొనరు ఎట్లా? పంజాబ్ వడ్లు కొంటారు ఎట్లా, తెలంగాణ వడ్లు కొనరు ఎట్లా? బీజేపీ మంది వైఖరి నశించాలి, బీజేపీ మంది వైఖరి నశించాలి. गुजरात को बनेगा, तेलंगाना को बनेगा, 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 गुजरात को बनेगा, तेलंगाना को बनेगा. बीजेपी वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने आज रियासत के किसानों को मशवरा दिया कि वो धान की खरीदी के मसले पर मरकजी हुकूमत के रवैये के खिलाफ अपने अपने मकानात पर सियाह परचम लहराते हुए मरकजी हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा करें। निरंजन रेड्डी ने वनपति कैंप ऑफिस में मार्केट कमेटी के चेयरमैन, जिला परिषद, मंडल परिषद, सिंगल विंडो चेयरमैन के साथ एक इजलास मुनक्किद करते हुए कहा कि किसानों का एहतजाज की आवाज़ दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए। उन्होंने कहा कि टीआरएस की जानिब से मरकज की बीजेपी हुकूमत के खिलाफ किए जाने वाले मुजाहिरों में बड़ी तादाद में हिस्सा लेते हुए उसे कामयाब बनाएं। निरंजन रेड्डी ने कहा कि पंजाब और दीगर रियासतों में जिस तरह मरकजी हुकूमत मुकम्मल तौर पर धान की खरीदारी कर रही है, वहीं तेलंगाना में पैदा होने वाली धान को भी उसी तर्ज पर खरीदने का मरकज से मुतालबा किया जा रहा है, लेकिन मरकजी हुकूमत तेलंगाना से धान की खरीदारी से इनकार कर रही है। तेलंगाना के वज़ीर जंगलात इंदिरा करण रेड्डी ने कहा कि टीआरएस ने धान की खरीदारी के लिए मरकज से मुतालबा करते हुए जद्दोजहद का आगाज किया, जिसका मकसद तेलंगाना के किसानों को फायदा पहुंचाना है। उन्होंने निर्मल में हैदराबाद नागपुर कौमी शाहराह पर पार्टी की जानिब से मुनक्किदा रास्ता रोको प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने रबी के सीजन के लिए पैदा धान की खरीदारी न करने पर मरकजी हुकूमत के फैसले पर नुक्ताचीनी की। उन्होंने साथ ही कौमी शाहराह पर टीआरएस और किसानों के एहतजाज से यगानिगत का इजहार किया। उन्होंने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि टीआरएस ही वाहिद पार्टी है जो धान की मरकज की जानिब से खरीदारी तक जद्दोजहद को जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कायदीन जिन्होंने वादा किया था कि धान की खरीदारी मरकज के जरिए करवाएंगे, अब अपना मुंह छुपा रहे हैं। అంబేద్కర్ అంబేద్కర్ భవన్ 12 గంటల వరకు దయచేసి ఈ రోజున కానీ మన కార్యకర్తలు ఇంత ఎండలో
మరి అందరూ కూడా ప్రతి ఒక్క నాయకుడు రైతుల పక్షాన్ని నిలబడి ఇవాళ ధర్నా కార్యక్రమం చేస్తున్నారంటే మరి ఇప్పటికైనా కేంద్ర ప్రభుత్వం కన్ను తెరిచి బుద్ధి తెచ్చుకొని మీరు ఇప్పటికైనా క్షమాపణ చెప్పి తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి మీరు వరిధాన్యం కొనుగోలు చేయాలని చెప్పి అడుగుతా ఉన్నాము. రేపు 11వ తారీఖున మన ఢిల్లీలో కూడా శాసన సభ్యులు, మంత్రులు, ఎంపీలు, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారితో పాటు అందరూ కూడా ఢిల్లీలో 11వ తేదీన కూడా ధర్నా కార్యక్రమం ఉంది. మన ధర్నా కార్యక్రమం తర్వాత మీ కన్ను తెరిచి మరి మీ కన్నుపై మరి వెంటనే ధాన్యం కొనాలని మేము అందరూ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము, హెచ్చరిస్తా ఉన్నారని చెప్పి మీ అందరూ కూడా తెలియజేస్తున్నాం. ఈ రోజు మనం నిర్మల్లో పోచంపాడు ప్రాజెక్టు కానీ, కడెం ప్రాజెక్టు, గడెనబాగ్ ప్రాజెక్టు, స్వర్ణ ప్రాజెక్టు, అటుపోతే మనకు ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టు, మరి ఈ విధంగా ఎన్నో రకాలుగా మనకు ప్రాజెక్టుల కింద పంట పండించడానికి చెక్ డ్యాములు కానీ మోటార్లలో బోర్ వేస్తే బ్రహ్మాండంగా 20 ఫీట్లలో మనకు నీళ్ళు వస్తున్నాయి. 24 గంటల కరెంట్ ఫ్రీ. భారతదేశ तेलंगाना कांग्रेस कमेटी की जानिब से पेट्रोल, डीजल और पकवान गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ रियासत के तमाम जिला कलेक्ट्रेट्स पर धरना दिया गया और जिला कलेक्टर्स को याददाश्त पेश की गई। कबल अज़ीं तेलंगाना पीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी ने जूम ऐप पर कांग्रेस के जिले सुदूर और पार्टी के अहम कायदीन से खिताब करते हुए कहा कि अवाम के साथ मुनासिब इंसाफ मिलने तक कांग्रेस अपना एहतजाज जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि पेट्रोल, डीजल, पकवान गैस के साथ साथ बरकी शरहों में कमी लाने और किसानों की जानिब से पैदा की जाने वाली धान की खरीदारी तक कांग्रेस अपना एहतजाज जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि धान की खरीदारी के मसले पर रियासत की टीआरएस हुकूमत और मरकज की बीजेपी हुकूमत एक दूसरे को जिम्मेदार करार देते हुए किसानों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की पैदा करदा फसल की खरीदारी की जिम्मेदारी दोनों हुकूमतों पर आयद होती है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस हुकूमत धान की खरीदारी को 1960 रुपये फी क्विंटल अदा कर रही है। इसके अलावा 600 रुपये अलहदा तौर पर बोनस भी दिया जा रहा है। गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने चाशुमे को इल्जाम आयद किया कि रियासती हुकूमत गवर्नर के ओहदे की अहानत कर रही है। गवर्नर जिन्होंने कौमी दारुल-हुकूमत में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, समझा जाता है कि उन्हें रियासत में हालिया वाक़यात बशमूल गवर्नर के प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी वगैरह से वाकिफ करवाया। वज़ीर आज़म को रियासती मुखर्रना के बजट सेशन से गवर्नर को खुतबे से दूर रखने से मुतालिक फैसले से भी वाकिफ करवाया गया। वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात के बाद मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने हालिया वाक़यात का हवाला दिया और कहा कि गवर्नर के दस्तूरी ओहदे का एहतराम किया जाना चाहिए। सौंदरराजन ने ताहम कहा कि वो तेलंगाना के अवाम पर यह फैसला छोड़ती हैं कि रियासती हुकूमत ने उनके साथ किस तरह सलूक किया। वाक़यात से वज़ीर आज़म को वाकिफ करवाए जाने के बारे में पूछने पर गवर्नर ने कहा कि ये एक खुली चीज़ है, हत्ता कि अखबारी नुमाइंदे और सब वाकिफ हैं।
इन चीजों की रिपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। हालिया महीनों के दौरान गवर्नर सौंदरराजन और चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के दरमियान इख्तलाफात में इजाफे के पस मंजर में इस मुलाकात को अहमियत हासिल हो गई है। गवर्नर ने कहा कि हालांकि वो दस्तूरी इख्तियारात रखती हैं, लेकिन वो उन इख्तियारात को नाफिज करने की ख्वाह नहीं है। उन्होंने दावा किया कि वो हुकूमत के साथ अच्छे ताल्लुकात बरकरार रखने की ख्वाह हैं। गवर्नर ने तरदीद करते हुए कहा कि उन्होंने किसी भी मामले को सियासी रंग दिया या फिर कोई मुतनाज़िया फैसला लिया। उन्होंने रुकने कानून साज काउंसिल की हैसियत से पी कौशिक रेड्डी की नामजदगी के ताल्लुक से हुकूमत की सिफारिश पर अपने फैसले की मुदाफियत भी की। उन्होंने कहा कि वो मुझ पर जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं पहले ही वजाहत कर चुकी हूं कि ये गवर्नर का कोटा है और उसके जरिए सिर्फ समाजी खिदमत के तहत ही काउंसिल में रुकून को नामजद किया जा सकता है। जब वो उम्मीदवारी से मुतमईन नहीं हुई तो उन्होंने अपना मौक़िफ़ वाज़े कर दिया। गवर्नर ने कहा कि हर चीज़ की वो मुखालिफत की ख्वाह नहीं है और वो कोई तनाज़ा पैदा करना नहीं चाहती। गवर्नर ने जोर देकर कहा कि ये एक सियासी फैसला नहीं बल्कि दस्तूरी फैसला था। वज़ीर बरकी जगदीश रेड्डी ने वाज़े किया कि रियासती हुकूमत आइन का बेहद एहतराम करती है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने जो रिमार्क्स किए हैं वो अफसोसनाक है। वज़ीर मौसूफ ने सूर्यापेट में मीडिया से बात करते हुए सवाल किया कि प्रोटोकॉल के मसले पर यहाँ पर कभी रद्द-ए-अमल जाहिर न करने वाली गवर्नर ने अब वहाँ क्यों इस पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि तमिलिसाई के गवर्नर का ओहदा संभालने पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन वजीर ने वाज़ेह किया कि मसला सिर्फ ये है कि वो गवर्नर से ज़्यादा बीजेपी लीडर की तरह रवैया अख्तियार कर रही है। उन्होंने कहा कि बजट इजलास आइन के मुताबिक मुनक़िद किया गया, गवर्नर को उनसे कोई मसला नहीं है। जगदीश रेड्डी ने कहा कि साबिक़ में जिस वक्त नसीमन रियासत के गवर्नर थे उस वक्त पैदा ना होने वाले मसाइल अब क्यों पैदा हो रहे हैं। जगदीश्वर रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि गवर्नर इब्तिदा से ही हुकूमत के हर कामों में रुकावट पैदा कर रही हैं। गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन किसकी ईमा पर इस तरह का रवैया अपना रही है, हमें इसका इल्म नहीं है। राजभवन में सियासत की जा रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से भेजे जाने वाले फाइल्स को दानिशा तौर पर गवर्नर रोक रही है। इब्तिदा में हमने सोचा कि गवर्नर के पास फाइल्स की यकसोई के लिए वक्त नहीं है, लेकिन अब मालूम हो रहा है कि गवर्नर ने दानिशा तौर पर हुकूमत के फाइल्स को रोक दिया था। जगदीश रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत या चीफ मिनिस्टर की जानिब से गवर्नर के खिलाफ प्रोटोकॉल का कोई मसला पैदा होने नहीं दिया गया। कांग्रेस के रुकने काउंसिल टी जीवन रेड्डी ने रियासती हुकूमत और गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन के दरमियान जारी तनाज़े के दौरान कहा कि हुकूमत को दस्तूरी ओहदे पर फायज शख्सियत का एहतराम करना चाहिए। जीवन रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की जानिब से गवर्नर को नजरअंदाज कर दिया जाना दस्तूर का एहतराम न करने के मुतरादिफ होगा। मीडिया से बात करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि गवर्नर का ओहदा एक दस्तूरी निज़ाम है, लेकिन यहाँ हुकूमत की जानिब से उस दस्तूरी निज़ाम को मुसलसिल नजरअंदाज किया जा रहा है। गवर्नर की जानिब से राजभवन में मुनक़िदा उगादी तकरीब में चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी ने भी शिरकत नहीं की, जो मायने ख़ैज़ है। उन्होंने कहा कि तमाम बीजेपी और टीआरएस की जानिब से मिलकर खेला जाने वाला ड्रामा है। जीवन रेड्डी ने कहा कि टीआरएस और बीजेपी पर अवाम भरोसा करने के मौक़िफ़ में नहीं है। आइंदा इंतखाबात में कांग्रेस का इख्तिदार यकीनी है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से मुलाकात के दौरान उन्होंने पार्टी कायदीन को मुत्तहिदा तौर पर आइंदा इंतखाबात में काम करने का मशवरा दिया। तेलंगाना के वजीर पंचायत राज एरवली दयाकर राव ने हन्नमकुंडा जिले के कुटक शाहपुर इलाके में 60 डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह किया। गरीबों को डबल बेडरूम मकानात फराहम करने की स्कीम के तहत ये मकानात 3 करोड़ रुपए के सरफे से तामीर किए गए। उन्होंने इस स्कीम के इस्तेफादा कुनिंदगान में मकानात हवाले किए। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि उन्होंने अपने 40 साल सियासी करियर के दौरान सिर्फ वज़राए आला को ही पसंद किया। राव ने कहा कि उन्होंने अपनी कम उम्री में मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला के तौर पर एनटी रामाराव को देखा, जिन्होंने गरीबों के लिए वज़ाइफ फराहम किए। दूसरे वज़ीर आला जो उनके पसंदीदा हैं वो चंद्रशेखर राव हैं। उन्होंने कहा कि गरीबों को फीकस 2000 रुपये वजीफा फराहम करने का सेहरा वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के सर जाता है। उन्होंने बीजेपी पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि बीजेपी इख्तियार वाली रियासतों में गरीबों को सिर्फ 500 रुपये ही वजीफा दिया जाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ 300 रुपये वजीफा फराहम करती है। उन्होंने अवाम को यकीन दहानी करवाई कि हुकूमत जल्द ही 57 बरस की उम्र के अफराद के लिए भी वजीफा फराहम करेगी। तेलंगाना बीजेपी के सरबराह बंडी संजय ने कहा है कि बीजेपी का हमेशा मकसद अवाम की बहबूद होता है। उन्होंने पार्टी की 42वीं यौम तासीस के मौके पर हैदराबाद में पार्टी के सदर दफ्तर में पार्टी परचम लहराया।
इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आवाम ने हमें इन 3 वर्षों में काफ़ी मोहब्बत और ताउन दिया है। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि बीजेपी तेलंगाना को इस तरह तरक्की देगी जैसे तरक्की गुज़िश्ता 8 बरस में नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि बीजेपी उनकी हिमायत करती है जो पार्टी के लिए सख्त मेहनत करते हैं। उन्होंने कहा कि ख़ानदानी सियासत रियासत में जारी है। उन्होंने मजीद कहा कि बीजेपी मुस्तकबिल में इसका खात्मा करेगी। बंडी संजय याद दहानी करवाई कि बीजेपी ने किसानों की बहबूद के लिए काम किया है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि टीआरएस सियासी फायदे के लिए किसानों को गुमराह कर रही है। అనేక మంది కార్యకర్తలు వారు తెలంగాణ కేరళలో అధికారం రావని తెలుసు మనకు. అయినా కార్యకర్తలు బలిదానం అయిపోయారు. అక్కడ త్యాగాలు చేస్తూనే ఉన్నారు. పశ్చిమ బెంగాల్లో ఇప్పుడు కూడా అధికారం రాలేదు మనప్పుడు కూడా అయినప్పుడు కూడా అనేక మంది కార్యకర్తలు బలిదానం అయిపోయినారు. వాళ్ళు కేవలం అధికారం కోసం నమ్మిన సిద్ధాంతం కోసం త్యాగాలు చేయడానికి సిద్ధమైనటువంటి కార్యకర్తల పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ. దేశంతో పాటు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో కానీ ఇప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా అనేక మంది భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలు అధికారులకు వస్తావో రామంజులే. అధికారం కోసం ఎప్పుడు పార్టీ కార్యకర్తలు పనిచేయలేదు. కేవలము నమ్మిన సిద్ధాంతం కోసం. అందుకే దేశం చూడండి, సిద్ధాంతాల పునాదుల మీద ఉన్న పార్టీలు మాత్రమే ఈ దేశంలో ఉంటాయి తప్ప ఇవాళ అధికారం కోసం సిద్ధాంతాలను పక్కన పెట్టి జెండాలను జెండాలు కూడా మార్చినటువంటి పార్టీలు ఈ దేశంలో మనుగడ సాధించాలనే విషయాన్ని చరిత్ర చూస్తే మనకు స్పష్టమవుతా ఉన్నది. అందుకే భారతీయ జనతా పార్టీ సిద్ధాంతాలు कांग्रेस के रुकन असेंबली व रियासती कांग्रेस के कारगुजार सदर जग्गा रेड्डी ने आज अपने अफराद खानदान के साथ कांग्रेस कायद राहुल गांधी से दिल्ली में मुलाकात की। बाद मीडिया से बात करते हुए जग्गा रेड्डी ने बताया कि राहुल गांधी ने सियासी मामलों से पहले उनके बच्चों की तालीम से मुतालिक सवाल पूछे। जग्गा रेड्डी ने कहा कि बीजेपी और एमआईएम मजहबी मुनाफरत फैला रही है जबकि टीआरएस इन दोनों को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से मुलाकात के बाद उनके सारे गिले शिकवे दूर हो चुके हैं और अब वो कांग्रेस पार्टी को इख्तिदार में लाने के लिए दिलो जान से काम करेंगे। సమస్య లేదు, ఏది ఏమన్నా ఇంటి అసెంబ్లీ చర్చ లేదు. రాహుల్ గాంధీ గారి మెసేజ్ మనము మన కుటుంబము ప్రజా సమస్యల మీద ఆ 3 పార్టీలతో 3 ప్రభుత్వం ఎట్లా ఎండగట్టాలి, కాంగ్రెస్ పార్టీని ఎట్లా అధికారం తీసుకోవాలి, ఈ రకంగా మేమందరం కూడా పనిచేయడం. అసలు ఇష్యూలే లేదు. ఇప్పుడు మీ ఫ్యామిలీలో ఏమైనా టికెట్స్ పెరిగే అవకాశం ఉందా సార్? మీ ఫ్యామిలీలో కుటుంబంతో కూడా కలిసి టికెట్లు పెరిగే అవకాశం లేదు. నేను రాహుల్ గాంధీ గారిని సార్ నాకు టికెట్ లేని అడుగుతాను. అసలు టైం దొరికింది. రియల్ గా మనస్ఫూర్తిగా చెప్తున్నా, నాకు ఈ పార్టీ ఈ ఫ్యామిలీ, ఆ ఫ్యామిలీ అంటే నాకు చాలా, వీళ్ళకైతే మొదటి నీళ్ళ పుట్టిన వాళ్ళు కానీ నేను సగంలో వచ్చినా నాకు కూడా చాలా పిచ్చి. వాళ్ళ ఎథిక్స్, వాళ్ళ ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏ రాజకీయ పార్టీకి ఉండదు. మాకెన్నో चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश वायस जगन मोहन रेड्डी ने 4 जुम्मे को दिल्ली में मरकजी वजीर रोड ट्रांसपोर्ट व हाईवेज नितिन गडकरी से मुलाकात करते हुए अहम रोड प्रोजेक्ट बशमूल विशाखापट्टनम भोगापुरम कॉरिडोर प्रोजेक्ट पर तबादला ख्याल किया। कौमी दारुल हुकूमत के अपने दौरे के दूसरे दिन जगन मोहन रेड्डी ने मरकज से मुतालबा किया कि वो विशाखापट्टनम भोगापुरम कॉरिडोर प्रोजेक्ट की मदद करे जिससे सयाहत को बड़े पैमाने पर तरक्की मिलेगी। नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान चीफ मिनिस्टर ने बताया कि विजयवाड़ा में मगरबी बाईपास की तामीर के काम सुस्त अंदाज में किए जा रहे हैं। उन्होंने मरकजी वजीर पर जोर दिया कि वो इस रोड को कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी ग्रिड रोड से मजबूत करने के इक़दाम करें। तेलंगाना में आज से एमसेट, आईसेट, ई-सेट इम्तिहानात में शिरकत के लिए उम्मीदवारों से दरखास्तें कबूल की जा रही हैं। उम्मीदवारों को मशवरा दिया गया है कि वो दरखास्त फॉर्म दाखिल करते वक्त अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ज़रूर लिखें। इसी तरह दरखास्त गुजारों से ख्वाहिश की गई है कि वो दरखास्त फॉर्म पुर करते वक्त गलतियों को सरजद होने न दें। पुलिस मुलाजिमीन के साथ बदतमीजी के इल्जाम में भोलकपुर कॉर्पोरेटर गौसुद्दीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उनके खिलाफ बाद अफराद ने पुलिस मुलाजिमीन के साथ बदतमीजी करने की डीजीपी और वजीर तारक रामाराव से शिकायत की थी और वीडियो भी शेयर किया था, जिस पर वजीर केटीआर ने डीजीपी को इस मामले की तहकीकात करते हुए मुनासिब कार्रवाई करने की हिदायत दी। बताया गया कि गुज़िश्ता रोज भोलकपुर इलाके में बाज पुलिस मुलाजिमीन होटलों को रात देर गए तक खुले रखने पर बंद करवा दिया और बताया कि रात देर गए तक होटलों को खुले रखने की इजाजत नहीं है, जिस पर मुतालिका कॉर्पोरेटर ने माह रमजान में होटलों को बंद करवाने के लिए आने वाले मुलाजिमीन पर बरहमी जाहिर की और कहा कि पुलिस के आला ओहदेदारों ने रमजान में रात देर गए तक होटलों को खुले रखने की इजाजत दी है।
लेकिन उनके अहकामात पर निचले सतह के मुलाजिमीन अमल नहीं कर रहे हैं। तेलंगाना को लेकर चलते खाली मुर्शिदाबाद अलग हैदराबाद अलग नगर है पूरा ये होता है साथे कर रहे मुसलमान नहीं मार रहे నాలుగో తారీఖు రాత్రి అంటే అనగా 5వ తారీఖు తెల్లవారుజామున రాష్ట్రంలో ఇద్దరు బ్లూ కోట్స్ కానిస్టేబుల్ తర్వాత హోంగార్డ్ కానిస్టేబుల్ ఆఫీసర్ పేరు అనిల్, హోంగార్డ్ ఆఫీసర్ కారయ్య, వీళ్ళిద్దరు తన అలాటెడ్ డ్యూటీలో వాళ్ళకి అలాట్ అయిన ఏరియాలో పెట్రోలింగ్ చేస్తున్న కొన్ని ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ ఇంకా హోటల్స్ तेलंगाना में कहीं कहीं आइंदा 48 घंटों और 9 और 10 अप्रैल को हल्की तो औसत बारिश या बूंदाबांदी का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने चाशुमे को जारी करदा एक मीडिया बुलेटिन में बताया कि इस मुद्दत के दौरान शुमाली साहिली आंध्र प्रदेश में भी चंद मकामात पर बारिश हो सकती है। 7 और 8 अप्रैल को तेलंगाना, जुनूबी साहिली आंध्र प्रदेश और शुमाली साहिली आंध्र प्रदेश में मौसम के खुश्क रहने का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में कहीं कहीं बारिश हुई, जबकि साहिली आंध्र प्रदेश में भी 1 या 2 मकामात पर बारिश हुई। शराब नौशी के लिए रकम ना देने पर एक बेरहम बेटे ने हालत गुस्सा में अपनी मां को जदों को करते हुए कत्ल कर दिया। निजामाबाद रूरल मंडल के एक मौजू में कल रात ये वाकया पेश आया। सब इंस्पेक्टर रूरल पुलिस लिम्बाद्री के मुताबिक 56 साल अंजम्मा अपने बड़े बेटे ज्ञानेश्वर के साथ रहती थी, जो निजामाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सफाई कर्मचारी है, जबकि खातून का छोटा बेटा रोजगार के लिए खलीजी मुल्क गया हुआ है। 8 साल कबल शोहर के इंतकाल के बाद से खातून राइस मिल में मजदूरी करते हुए जिंदगी गुजार रही थी। ज्ञानेश्वर की 3 साल कबल शादी की गई, ताहम रोजाना शराब नोशी की आदत की वजह से उसकी बीवी उसके वालिदैन के मकान चली गई। ज्ञानेश्वर अपनी पूरी तनख्वाह शराब नोशी में खर्च कर दिया करता था। वो मजीद शराब के लिए रकम देने और अपनी बीवी को मकान से वापस लाने के लिए माँ से झगड़ा भी किया करता था। कल रात भी उसने शराब के लिए माँ से रकम तलब की। इनकार पर उसने वजनी पत्थर से सर पर हमला करते हुए अपनी मां का कत्ल कर दिया। तेलंगाना की रचाकुंडा पुलिस ने ऑनलाइन क्रिकेट सट्टाबाजी का पता चलाते हुए 9 अफराद बशमूल ऑर्गेनाइजर्स को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 11,80,000 रुपए जब्त कर लिए। साथ ही 2 बैंक खातों को मुंजमद करने की हिदायत भी जारी की। इन खातों में 31,17,000 रुपए हैं। कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा महेश भगवत ने कहा कि बुकीज टेलीफोन्स की लाइन्स का इस्तेमाल करते हुए शर्तें लगाने वालों को लाइन के नंबर देते। पहले ओवर की पहली गेंद के साथ ही सट्टेबाजी की शुरुआत हो जाया करती थी और यह सट्टेबाजी आखिरी गेंद तक जारी रहती। उन्होंने कहा कि मैच की सूरत हाल पर उनमें तब्दीलियां भी की जाती। उन्होंने कहा कि सट्टेबाज बुकीज को कॉल करते, ये कॉल उस वक्त किया जाता जब मैच जारी रहता। कॉलिंग के दौरान सट्टेबाजी की जाती। सट्टेबाजी के दौरान बुकीज सट्टा और सट्टा लगाने वालों की तफसीलात नोट कर लेते, उनमें हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग की जाती। मैच मुकम्मल होने के बाद बुकीज कलेक्शन एजेंट्स को उसूली की तफसीलात से वाकिफ करवाते और ये भी बताते कि किस सट्टेबाज के पास से कितनी रकम उसूल शुदनी है। कहते हैं कि बुरे कामों का फल बुरा ही होता है। आंध्र प्रदेश में ये बात सच साबित हुई। वहां एक चोर ने मंदिर से गहने चुराने के लिए दीवार में सुराख किया, लेकिन वो खुद ही उस छेद में फंस गया। उसे रंगे हाथों तब उससे पकड़ लिया गया जब उसने मदद के लिए लोगों को बुलाया। ఈ బంగారం వెండి ఉన్నాయి, వీటి కోసం గుర్తుపెట్టి మొత్తం ఎరగొట్టడం అయినది. కొట్టగా ఈ మధ్యలో ఇరుక్కున్నాడు, బయటికి రాలేదు. లోపలికి వెళ్ళని పరిస్థితిలో ఉన్న బయట ఉన్నాడు. हालत नशा में एक शख्स ने 69 साल खातून का रेप कर दिया। यह शर्मनाक वाकया जिले सिद्दीपेट में पेश आया। करीमनगर का रहने वाला आइलेश नामी नौजवान अपने रिश्तेदारों की शादी की तकरीब में शिरकत के लिए कोहिड़ आया हुआ था, जहां उसने शादी में शरीक एक 69 साल खातून का रेप कर दिया। मुतासिरा खातून की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और मुलजिम फरारी में बताया जा रहा है। पुलिस उसे तलाश कर रही है। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।